this is Chandni Dinani welcoming you to Magnet Brains and as you all know कि हम अपने board exam preparation के लिए one shot revisions कर रहे हैं. So today we need to revise the chapter from the diary of Anne Frank and the poem given in this chapter, that is Amanda, in one shot. So we are going to discuss first of all the main points of the first chapter, that is from the diary of Anne Frank. जितने भी important pointers होंगे इसमें about the family of Anne Frank, about her, about the instances जो भी उन्होंने mention किया है, we will read that and finally then we will come to the poem, that is Amanda. It's quite a big poem, बहुत सारे stanzas हैं but it's all okay. हम rhyme scheme, literary devices और जितने भी main pointers हैं in each stanza we are going to discuss. Clear? So without wasting any more time, let's just begin with the main points of the chapter, that is from the diary of Anne Frank. So Annalise Mary, that is Anne Frank, तो उनका ओरिजिनल नेम क्या है? Annalise Mary. और ये कहाँ mentioned है? आपके बुक में सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कुछ, उसमें mentioned है. So because it's given in your books though, you should definitely try to read it and find out the important pointers from that too. तो यहाँ पर वो मैंने सारे points लिख दिए हैं, so now you don't have to go and read it and find it. तो सबसे पहली चीज़ है एन फ्रैंक का जो ओरिजिनल नेम है वो क्या है? एनालीज मेरी. और उनको वो क्या बोलते हैं भाई, बहुत जानी जाती है वो इसी नाम से, that is एन फ्रैंक. She was born on 12th June 1929 and she died either in February or March. 100% नहीं कह सकते because they were there in the concentration camp. तो exactly नहीं पता कि what was or which was the month in which Anne Frank unfortunately left the world. तो यहाँ पर जो उनकी date है when she died, that is either February or March 1945. Clear? तो यहाँ पर ये चीज़ है second जो आपको ध्यान में रखनी है, her birth date and the day or the time when she died. Clear? She was a German born Jewish girl. तो वो है क्या? वो real में Jewish है but she was born in Germany, so she is German born Jewish girl and died of typhus, which is a disease in Bergen-Belsen concentration camp system. What is concentration camp? Already बहुत अच्छे से देख चुके हैं, line by line explanation. Sort of एक पूरे camp बनाए जाते थे जहाँ पे बहुत से लोगों को रखा जाता था. They were ill treated and that was the place जहाँ पर Anne Frank और उनकी family को भी रखा गया था. Clear? एन सिस्टर थी मार्गॉट फ्रैंक. एन के फादर का नाम है ऑटो फ्रैंक एंड ही वाज द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप. यानी कि इनका जो पूरा ग्रुप था, इनकी फैमिली, देयर वर अदर मेंबर्स टू, उनमें से द ओनली वन हु सर्वाइव्ड वाज ऑटो फ्रैंक जो कि है एन्स फादर. एंड देन ओनली ही took this diary and then उसको publish करवाया उन्होंने and that's why we are able to read all these things. और एन की मदर का नाम है एडिथ होलैंडर फ्रैंक. तो आपको ये सारे नाम याद रखने हैं. नंबर 1, एन की सिर्फ एक सिस्टर थी, शी वॉज मार्गरेट फ्रैंक. उनके पापा हैं ऑटो फ्रैंक और उनकी मॉम का नाम है एडिथ होलैंडर फ्रैंक. क्लियर? ऑल राइट. The diary was given to Anne Frank on her 13th birthday, where she chronicled the events of her life from 12th June 1942 to 1st August 1944. तो यहाँ पर ये बताया गया है कि डायरी किसको दी गई थी? एन फ्रैंक को उनके बर्थडे पे किसने गिफ्ट की थी. और उस डायरी में उन्होंने क्रॉनिकल्ड द इवेंट, यानी कि अपने जितने भी इवेंट्स हैं उनके, जो कुछ भी होता था उस दिन पे या उनको कुछ भी याद आता था तो वो सब कुछ उन्होंने मेंशन किया है. और वो जो चीज़ें हैं वो कहाँ से कहाँ तक की हैं? दैट इज शी स्टार्टेड राइटिंग द डायरी ऑन 12th June 1942 और लास्ट डायरी एंट्री जो है वो है 1st August 1944 को. तो आपको ये ध्यान में रखना है, द डेट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये मेंशन्ड है आपके चैप्टर में ऑब्वियसली, तो दैट्स व्हाई यू नीड टू कीप देम इन योर माइंड एंड ऑल्सो मेंशन दीज इन योर आंसर्स जहाँ पर भी इसकी नीड हो बिकॉज दैट्स गोइंग टू हाईलाइट योर आंसर. क्लियर? All right. So writing a diary, a real strange experience for Anne Frank because it seemed to her that later neither she nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl. तो अब begin हो चुकी है Anne Frank की डायरी राइटिंग और वो उसके पहले बोलती हैं कि उनके लिए डायरी एंट्री करना थोड़ा स्ट्रेंज है. क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि आगे जाके ना तो कोई और ना ही वो खुद इंटरेस्टेड होंगी अपने थॉट्स को जानने में. यानी एक 13-year-old स्कूल गर्ल के म्यूजिक्स, थॉट्स, वो क्या फील करती है उसको जानने के लिए ना तो कोई इंटरेस्टेड होगा ना वो खुद इंटरेस्टेड होंगी आगे जाके, ऐसा उनका मानना था. तो शी फेल्ट दैट दिस इज अ काइंड ऑफ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर हर. Oh well, it does not matter. I feel like writing and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. और फिर ये अपने आप को वो रीजन देती हैं
कि क्यों उनको लिखनी चाहिए डायरी, तो वो यहाँ पे मेंशन करती हैं कि इट डज नॉट मैटर, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता वो खुद इंटरेस्टेड हो इसको पढ़ने में या कोई और हो या ना हो, इट्स जस्ट दैट उनको लगता है कि उनको डायरी में लिखना चाहिए। एंड ऑल्सो उनके दिमाग पे इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, उनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर है चीज़ों का, बहुत कुछ सोचती रहती हैं, तो अगर वो किसी से शेयर नहीं करेंगी या फिर किसी के ऊपर लिखेंगी नहीं, जैसे कि एंट्री नहीं करेंगी बुक्स में, तो फिर वो चीज़ें जो है उनको डिस्टर्ब करती रहेंगी। तो शी वॉन्टेड टू गेट ऑल दीज थिंग्स ऑफ हर चेस्ट, दैट इज शी वॉन्ट्स टू फील रिलैक्स, और वो इसीलिए ये सारी चीज़ें मेंशन करने वाली हैं कहाँ, डायरी में। क्लियर? ऑल राइट। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। अब ये लाइन पे आपको बहुत से क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, जस्टिफाई व्हाई डिड एन फ्रैंक से दीज लाइन्स। तो वो बोलती हैं कि पेपर में बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है कंपेयर टू पीपल, बिकॉज ऑब्वियसली जब वो अपनी बातें जो हैं किसी इंसान से शेयर करती हैं तो ऐसा हो सकता है कि या तो वो इंटरेस्टेड नहीं होगा या फिर वो बोल देगा कि मैं बोर हो रहा हूँ, रुक जाओ, मुझे नहीं सुनना। तो जो इंसान होते हैं, पीपल होते हैं, दे आर नॉट गोइंग टू लिसन टू यू वेदर they find it boring or whether if they are finding it not that interesting to them, और फिर भी अगर वो सुनते जाएं, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। तो वो यही सोचती है कि पेपर में ज़्यादा पेशेंस है, यानी पेपर कभी उनको ये नहीं बोलेगा कि रुक जाओ, मुझे नहीं सुनना, मैं बोर हो रहा हूँ, तो वो जब तक चाहें उस पेपर पे अपने थॉट्स लिख सकती हैं। I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. तो वो कब सोचती है ये लाइन, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, बिकॉज ये भी आप मेंशन कर सकते हो अपने आंसर में कि एन फ्रैंक ने ये सोचा कि पेपर में ज़्यादा पेशेंस है एज कम्पेयर टू पीपल व्हेन शी वॉज सिटिंग इन हर हाउस वन डे। बहुत बोर फील कर रही थी वो, और शी वॉज लिस्टलेस, उनको समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, कि मैं बाहर जाऊँ या फिर अंदर बैठ के कोई काम करूँ, तो उनको समझ नहीं आ रहा था, शी वॉज लिस्टलेस। सो दैट्स वाई शी थॉट कि पेपर इज समथिंग विच हैज़ मोर पेशेंस, तो मुझे जो है अपने थॉट्स एक डायरी में लिखने चाहिए। Paper has more patience than people. Anne Frank thought of this saying on one of those days, feeling a little depressed, bored and listless, with no energy or interest. तो ये जो चीज़ें हैं वो इधर पे आपको डिस्क्राइब की हैं, और इस तरीके से आपके जो शॉर्ट नोट्स हैं वो भी यहाँ पर प्रेजेंट हैं कि वो एक दिन ये जब सोच रही होती हैं, जब उनको लगता है कि वो बोर हो गई हैं, वो लिस्टलेस हैं, शी इज़ विथ नो एनर्जी और इंटरेस्ट, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है, शी इज़ आउट ऑफ आइडियाज़ कि बाहर जाऊँ या फिर घर पे बैठूँ। दैट टाइम शी थॉट कि पेपर में ज़्यादा पेशेंस है, और इसीलिए अब वो डायरी एंट्री स्टार्ट करेंगी। क्लियर? ऑल राइट। kept a diary in the first place as had no friend. फिर ऑब्वियसली उन्होंने हमेशा अपनी डायरी को सबसे पहले रखा, प्रायोरिटी रखी, बिकॉज शी हैड नो फ्रेंड्स। एंड इट वॉज नॉट लाइक वो बोलती हैं आगे जाके कि आई वॉज अलोन और आई वॉज लोनली, मैं अकेली थी, ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज कोई भी बिलीव नहीं करेगा कि एक 13 ईयर ओल्ड गर्ल जो है वो अलोन है। बट वो बोलती हैं कि ऑब्वियसली आई हैड लविंग पेरेंट्स, उनकी बहुत सी फैमिली थी, और 16 ईयर ओल्ड सिस्टर, 30 पीपल दैट शी कुड कॉल फ्रेंड्स। ऑन द सर्फेस शी सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट वन ट्रू फ्रेंड। तो वो बोलती हैं कि ऑब्वियसली उनके पास पेरेंट्स थे, वो भी लविंग पेरेंट्स, उनकी एक एल्डर सिस्टर है, 30 और लोग थे जो उनके साथ रह रहे थे, जिनको वो बोल सकती थी फ्रेंड्स। क्लियर? शी कुड कॉल देम। बट सरफेस पे अगर देखें ना तो सब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ है उनके पास, बट अगर हम डीप विद इन जाके उनके बारे में सोचें तो शी वॉज समवन जिसकी एक कोई ट्रू फ्रेंड नहीं थी या नहीं था, जिससे वो अपनी हर एक बात बिना सोचे समझे शेयर कर सके। तो सब थे उनके पास, वो अलोन नहीं थी, बट दैट इज ऑन द सर्फेस। डीप विद इन शी फेल्ट द नीड ऑफ अ फ्रेंड. To enhance the image of this long-awaited friend in her imagination and to not jot down the facts in this diary the way most people would do, wants the diary to be her friend, named her Kitty. तो वो जो है ये सोच रही थी कि जैसे कि बहुत ज़्यादा लोग सोचते हैं कि डायरी में जो मन आए लिखते जाओ, जॉट डाउन यानी बस लिखते जाओ विदाउट थिंकिंग कि क्या लिखना चाहिए क्या नहीं। तो एन फ्रैंक ने सोचा था कि मैं सिर्फ इसको एक डायरी की तरह ट्रीट नहीं करूंगी लाइक अदर पीपल डू, आई वुड ट्रीट इट एज माई फ्रेंड। उसका नाम भी रखती है वो किटी, और अब उसमें वही चीजें मेंशन करेंगी जो कि वो एक फ्रेंड से शेयर करना चाहती थी। क्लियर? ऑल राइट। ऑटो, दैट इज ऑटो फ्रैंक कौन है? एन के फादर। He was the most adorable father according to Anne Frank. Did not marry her mother until he was 36 and she was 25. तो यहाँ पे ये भी चीज़ मेंशन की गई है कि जब इनके फादर की एज 36 थी, इनकी मदर की एज थी 25, तब इनकी मैरिज हुई थी। मार्गरेट फ्रैंक कौन है? एन फ्रैंक की सिस्टर। She was born in Frankfurt in Germany in 1926, और अभी हमने देखा कि जब एन फ्रैंक 13 ईयर की हैं, उनकी सिस्टर के लिए उन्होंने बोला 16 ईयर्स, यानी 3 साल का डिफरेंस है। तो ये बॉर्न हुई 1926 में, और ये कब बॉर्न हुई हैं? 1926
9 में। कौन? एन फ्रैंक। क्लियर? लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल शी वॉज 4। तो मार्गरेट जब 4 साल की थी तब तक वो कहाँ रहे हैं? फ्रैंकफर्ट में। फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। फिर फादर जो है इनके वो कहाँ चले गए? हॉलैंड चले गए 1933 में। और उनकी मदर भी उनके साथ चली गई थी। किस मंथ में? सितंबर में। तो सितंबर 1933 में जो फादर हैं किसके? मार्गरेट और एन फ्रैंक के, दे वेंट टू हॉलैंड। मार्गरेट एंड एन वर सेंट टू आइकन टू स्टे विद देयर ग्रैंड मदर। और इनको कहाँ भेज दिया था? इनके ग्रैंड मदर के घर पर, मार्गरेट और एन को। फिर उसके बाद मार्गरेट भी चली जाती हैं कहाँ? हॉलैंड। कब? इन दिसंबर। और एन जाती हैं कब? फरवरी में। क्लियर? तो कब हॉलैंड में कौन कौन गया ये चीज यहाँ पे बताई गई है। 1933 में उनके फादर और उनकी मदर गए इन द मंथ ऑफ सितंबर टू हॉलैंड। फिर एन और मार्गरेट जो है वो रह रहे थे अपने ग्रैंड मदर के साथ इन आकिन सिटी। फिर मार्गरेट जो है इनकी सिस्टर, उनको दिसंबर में भेज दिया गया हॉलैंड, और एन को कब भेजा गया? इन फरवरी। सो दिस इज हाउ उनका पूरा डिस्क्रिप्शन है व्हेन दे शिफ्टेड। क्लियर? ऑल राइट। Anne started right away at the Montessori nursery school. Stayed there until 6th. 6th form teacher was Mrs. Cooper's. तो यहाँ पे mentioned है कि एन ने फिर मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल पे स्टार्ट कर दी थी अपनी एजुकेशन फ्रॉम द फर्स्ट फॉर्म। और जैसे ही वो 6 की थी, 6 ईयर्स की, तब तक वो वहीं पे रही, यानी 6th फॉर्म तक, सॉरी कहना चाहिए, जब तक वो 6th फॉर्म में आई क्लास में तब तक वो वहीं पे पढ़ रही थी। और जब उनका 6th फॉर्म चल रहा था तो उनके जो टीचर थे वो कौन थी? मिसेस कूपर्स। शी वॉज द हेड मिस्ट्रेस। और एन फ्रैंक और इनका एक बहुत अच्छा बॉन्ड था, बहुत अच्छा कनेक्शन था। तो जिस दिन फेयरवेल हो रहा था, दे बोथ वर क्राइंग बैडली। Summer of 1941, Grandma fell ill, had to have an operation. Anne's birthday passed with little celebration. Grandma died January 1942. तो यहाँ पे important pointers क्या हैं कि 1941 के summers के जो month थे तब एन फ्रैंक की ग्रैंड मदर जो है शी फेल इल, वो बीमार हो गई और इसीलिए उनका ऑपरेशन कराना पड़ा था। बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स जो एन का बर्थडे था उस ईयर, दैट इज इन 1941, वो बहुत नॉर्मली बीता एंड इट वाज नॉट लाइक कि बहुत जोरों शोरों से सेलिब्रेशन हुआ हो। सो इट पास्ड विद लिटिल सेलिब्रेशन एंड अनफॉर्चुनेटली ग्रैंड मा डाइड इन द मंथ जनवरी ऑफ 1942। तो यहाँ पे ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है बिकॉज ग्रैंड मा से रिलेटेड भी आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि एन फ्रैंक बहुत ज्यादा कनेक्टेड थी या बहुत अच्छा बॉन्ड था उनका उनकी ग्रैंड मदर के साथ, तो शी काइंड्स ऑफ मिस्ड हर व्हेनेवर शी थॉट ऑफ हर। और जैसे ही वो चली गई थी उनको छोड़कर तो वो हमेशा उनको याद करती थी। प्रेजेंट डेट 20 जून 1942, डियरेस्ट किटी। और अब वो स्टार्ट कर रही हैं डायरी एंट्री करना, वो है 20 जून 1942 और वो बिगिन करती हैं डियरेस्ट किटी। हमें बताया ना हम डियर डायरी लिखते हैं, उन्होंने क्या लिखा है? डियरेस्ट किटी, यानी सबसे प्यारी कौन है उनको? ये किटी है, ये डायरी है, क्योंकि वो उसको अपनी फ्रेंड की तरह ट्रीट करती हैं। क्लियर? अब जो कुछ भी मेंशन होगा वो सब क्या होगा? डायरी एंट्री, जो कि हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर? ऑल राइट। Entire class is quacking in its boots, that is, be very worried or frightened. The forthcoming meeting, teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. According to Anne, about a quarter of the class should be kept back. तो यहाँ पर वो बता रही है कि इंसिडेंट अपने स्कूल का, और वो स्कूल के इंसिडेंट्स ही बताएंगी इस चैप्टर में, उनका वही डायरी का एंट्री जो है वो हमने यहाँ पर लिया है। तो सबसे पहले वो ये बताती हैं कि पूरी क्लास का सिनेरियो वो क्रिएट करिए हमारे दिमाग में कि पूरी क्लास में सारे बच्चे जो हैं दे आर क्वैकिंग इन इट्स बूट्स, यानी कि बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, वरीड हैं, नर्वस हैं, क्योंकि मीटिंग जो होने वाली है अभी उसमें टीचर्स डिसाइड करने वाले हैं कि कितने बच्चों को नेक्स्ट क्लास में भेजना है और कितने बच्चों को वापस से क्लास रिपीट करानी है, यानी कौन बच्चे हैं जो पास होने वाले हैं, कौन बच्चे हैं जो फेल होने वाले हैं। और एन फ्रैंक बोलती है मेरे हिसाब से तो अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास, यानी कि टोटल स्ट्रेंथ का 1/4 पार्ट जो है क्लास का वो डमीज है। यहाँ पे ऐसा बोला गया इन द चैप्टर, यानी कि वो बच्चे ऐसे हैं जिनको पीछे रखना चाहिए या फिर फेल कर देना चाहिए बिकॉज दे आर काइंड ऑफ स्टूपिड एंड दे डोंट डिजर्व टू गो इन द नेक्स्ट क्लास। ओनली सब्जेक्ट एंड नॉट श्योर अबाउट मैथ्स। तो इन बिटवीन वो बताती हैं उनको कोई टेंशन नहीं था, एन फ्रैंक श्योर थी कि वो पास हो जाएंगी बिकॉज उनके बहुत अच्छे गए थे एग्जाम्स और सारे सब्जेक्ट्स उनको अच्छे लगते थे, बट सिर्फ एक सब्जेक्ट था जिसके लिए वो श्योर नहीं थी और वो कौन सा सब्जेक्ट था? मैथ्स। टोटल टीचर्स
कितने थे इनके स्कूल में? 9, जिसमें से 7 वर मेन, 2 वर विमेन। क्यों बताया गया है ये? क्योंकि आगे जाके वो अपने टीचर के बारे में ही डिस्क्राइब करने वाली है, जो हम बहुत अच्छे से जानते भी हैं, राइट। तो यहाँ पे वो बताती हैं कि सिर्फ जो सब्जेक्ट उनको श्योरिटी नहीं थी कि वो क्लियर कर पाएंगे या नहीं, वो था मैथमेटिक्स। और उनके पूरे स्कूल में टोटल जो टीचर्स थे वो कौन से थे? 9 टीचर्स, जिनमें से 7 वर मेन, दैट इज मेल टीचर्स, और बाकी की 2 रिमेनिंग क्या थी? फीमेल टीचर्स। क्लियर? मिस्टर कीसिंग। अब आते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इनका, जो कि इनके टीचर हैं, किसके? एन फ्रैंक के। तो शी सेज मिस्टर कीसिंग, ओल्ड फॉगे, टीचर्स मैथ्स अनॉयड विद एन बिकॉज टॉक्ड सो मच। तो वो बोलती हैं कि ये जो मिस्टर कीसिंग है, जो कि उनके मैथमेटिक्स के टीचर हैं, उनको एन फ्रैंक बिल्कुल पसंद की बात नहीं कहेंगे, बट वो बहुत चिढ़ते थे। ही वॉज अनॉयड एन फ्रैंक की एक हैबिट की वजह से। और वो ये एन फ्रैंक बहुत ज़्यादा टॉकेटिव थी क्लास में, तो ये ज़्यादातर क्या करते थे? बहुत अनॉयड हो जाते थे, डिस्टर्ब हो जाते थे, डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे बिकॉज ऑफ एन फ्रैंक। बिकॉज वो पूरी क्लास में क्या करती थी? बातें करती थी, तो सॉर्ट ऑफ एक डिस्ट्रैक्शन कॉज होता था। सो दैट्स वाई ही वॉज अनॉयड विथ एन फ्रैंक। और इसीलिए आगे की जो भी स्टोरी है, पनिशमेंट है, वो सब हम पढ़ेंगे। क्लियर? ऑल राइट। After several warnings, assigned extra homework on essay or chatterbox। तो हाईलाइटेड क्यों रखा है मैंने? बिकॉज आपको तीनों टॉपिक्स के नाम याद रखने हैं अपने एग्जाम्स के लिए। तो वो बहुत ज्यादा चिढ़ चुके थे, अनॉयड थे, बहुत वार्निंग्स दी उन्होंने एन फ्रैंक को, बट क्योंकि एन फ्रैंक की हैबिट ही चेंज नहीं हो रही थी, तो उन्होंने क्या कर दिया? पनिशमेंट देना स्टार्ट किया कि ऐसे लिखो किस टॉपिक पे? अ चैटरबॉक्स। क्लियर? Anyone could ramble on। अब एन फ्रैंक घर जाती हैं, सोचती हैं, उनको याद आता है होमवर्क दिया है, बैठ के सोच रही हैं कि क्या लिखूं। तो उनके दिमाग में आता है कोई भी रैम्बल कर सकता है ऑन द पेजेस, यानी कि टू टॉक और राइट एट लेंथ इन अ कंफ्यूज्ड और इनकॉन्सिक्वेंशियल वेज। यानी बस लिखते जाना, पता होता कुछ है नहीं। ऐसा बहुत बार होता है, आंसर्स आते हैं एग्जाम में, आपको पता ही नहीं होता क्या लिखना है, तो कुछ भी लिखते जाते हो बस, कि खाली नहीं छोड़नी कॉपी, राइट। उसे कहते हैं रैम्बल ऑन करना। तो वो सोच रही थी कुछ कोई भी ये चीज कर सकता है, मैं भी कर सकती हूँ, बट ये जो तरीका होता है कि बिग बिग स्पेसेस छोड़ देना वर्ड्स के बीच में, ताकि बड़ा बड़ा आंसर लगे, तो ये सब चीजें उनको नहीं करनी थी। हर ट्रिक वॉज, एन की ट्रिक ये थी कि वो एक ऐसा ऐसे लिखेंगी टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। वो कुछ ऐसा लिखेंगी जिसमें वो प्रूव कर पाए कि बोलना या बात करना बहुत जरूरी है। तो वो इंपॉर्टेंस बताने वाली थी अपने ऐसे में अबाउट टॉकिंग। Wrote 3 pages, argued talking is a student's trait. Try to keep it under control. Unable to cure herself of the habit, her mother talked as much as she did. Inherited trait। तो ये जो है शॉर्ट में आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है। ऐसे को उन्होंने क्या किया? 3 पेजेस लिखे ऑन द टॉपिक चैटर बॉक्स। उसमें उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स दिए, अपने पॉइंट्स रखे, जहां वो बोलती हैं कि टॉकिंग एक स्टूडेंट का ट्रेट है, कैरेक्टरिस्टिक है। तो कोई स्टूडेंट है तो उसको तो बातचीत करना अलाउड होना चाहिए। और वो बोलती हैं, फिर एन फ्रैंक बोलती हैं कि शी वुड ट्राई टू कीप इट अंडर कंट्रोल, कोशिश करेंगी थोड़ी कम बातचीत करें। अनेबल टू क्योर हर सेल्फ, बोलती ऐसा नहीं है कि मैं पूरी तरीके से बंद कर दूंगी बातचीत करना, नहीं कर सकती मैं। क्यों? क्योंकि मेरी मदर जो है वो भी उतनी ही बातचीत करती है जितनी मैं करती हूँ, और ये एक इनहेरिटेड ट्रेट है। यानी एन फ्रैंक ने आर्ग्यू किया कि उनकी मदर से ये कैरेक्टरिस्टिक उनको पास ऑन हुआ है, जो कि है बहुत ज्यादा बात करना। तो वो उसको कंप्लीटली तो नहीं बंद कर सकती, बट डेफिनेटली वो कंट्रोल करने की कोशिश कर सकती हैं। तो ये था उनका फर्स्ट ऐसे, जो कि था ऑन द टॉपिक चैटर बॉक्स। क्लियर? ऑल राइट। मिस्टर कीसिंग असाइंड सेकेंड ऐसे। अब वो देती है मिस्टर कीसिंग को अपना ऐसे। 2 क्लासेस तक वो कुछ नहीं बोलते, नॉर्मल है वो, बट क्योंकि एन फ्रैंक की हैबिट खत्म ही नहीं हो रही, वो बातचीत करे जा रही है, तो मिस्टर कीसिंग उनको फिर से एक और ऐसे पकड़ाते हैं एज अ पनिशमेंट। और वो क्या होता है? एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, यानी कि एक ऐसा चैटर बॉक्स जो कभी भी ठीक नहीं हो सकता, चेंज नहीं कर सकता अपने आप को। इनकॉरिजिबल मतलब नॉट एबल टू बी चेंज। तो एन फ्रैंक कभी भी बातचीत करना बंद नहीं कर सकती, तो इस टॉपिक पे उन्होंने उनको ऐसे लिखने को दिया। Wrote it, Mr. Keesing had nothing to complain about for 2 whole lessons। तो वही चीज है कि वो लिख लेती हैं ऐसे, मिस्टर कीसिंग को दिखाती हैं, मिस्टर कीसिंग कुछ नहीं बोलते, 2 क्लासेस तक वो ओके हैं, बट 3rd लेसन में क्या करते हैं? वो 3rd ऐसे दे देते हैं एन फ्रैंक को, क्योंकि एन फ्रैंक ने अभी तक बातचीत करना बंद नहीं किया था। और 3rd ऐसे वो देते हैं, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, कि वो जो है इस तरीके से सॉर्ट ऑफ इंसल्ट कर रहे थे इस टॉपिक को देकर एन फ्रैंक की, और सारे बच्चे इस बात पे हंसते हैं, एन को भी हंसी आ जाती है, बट देन शी डिसाइड्स टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल। पर वो इस बार सोच लेती कि इस बार कुछ अलग लिखना पड़ेगा, कि इसके बाद फिर ये पनिशमेंट बंद ही हो जाए।
Her friend Sane, good at poetry, offered to help her write the essay from beginning to end in verse. तो उनके कोई फ्रेंड है जिसका नाम है सेन, वो बोलते हैं इनको कि वो क्योंकि खुद बहुत पोइट्री में अच्छे थे, बहुत सी पोएम्स वगैरह लिख लेते थे, तो उन्होंने बोला कि इस बार तुम ऐसे को एक वर्स फॉर्म में लिखो, एक पोएटिक फॉर्म में लिखो. मिस्टर कीसिंग was try to play a joke on Anne. She would make sure the joke was on him. अब इस पे भी क्वेश्चन बहुत बार आ सकता है आपको कि एन को लगता है कि मिस्टर कीसिंग जो है उनका मजाक उड़ा रहे थे, उनके ऊपर जोक प्ले कर रहे थे, बट एन फ्रैंक ने डिसाइड कर लिया था कि इस बार वो कुछ ऐसा करेंगी, कुछ ऐसा लिखेंगी अपने ऐसे में जिससे कि वो 100% ये गारंटी के साथ कुछ प्रूव कर पाए कि वो जोक उल्टा किस पे पड़ जाए, मिस्टर कीसिंग पे. यानी कि मेरा मजाक उड़ रहा है ना, मैं कुछ ऐसा लिखूंगी कि मिस्टर कीसिंग का ही मजाक उड़ जाए और वो खुद फिर ये पनिशमेंट देना बंद कर दें. क्लियर? ऑल राइट. तो अभी तक आपको तीनों जो ऐसे के टाइटल हैं वो याद रखने हैं. चैटरबॉक्स, इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स. क्लियर? ऑल राइट. फिनिश्ड हर पोएम वॉज ब्यूटिफुल. फिर वो पोइट्री लिख लेती हैं, वर्स फॉर्म में लिख लेती हैं ऐसे को, और वो बहुत ब्यूटिफुल भी होता है. पोएम किस बारे में बात कर रहा है वो भी आपको पता होना चाहिए. दिस इज अगेन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ जिसमें ये मेंशन्ड है कि उन्होंने ऐसा क्या लिखा कि इसके बाद वो जो चाहती थी वो प्रूफ हो गया. अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वैन. एक फादर स्वैन है और एक मदर डक है, उनके ऊपर पोएम लिखी है. विथ 3 बेबी डकलिंग्स. और इनके कितने डकलिंग्स थे? 3. Who were bitten to death by the father because they quacked too much. तो क्योंकि ये डकलिंग्स बहुत ज्यादा क्वैक क्वैक करते थे, जो कि उनको करना ही है भाई, उनका ट्रेट है, तो इसीलिए फादर स्वान ने क्या किया, उनको काट के मार डाला, बिकॉज वो बहुत ज्यादा क्वैक क्वैक करते थे. तो ये चीज जो है वो डाइजेस्ट हो ही नहीं सकती किसी से, बिकॉज क्वैक क्वैक करना है समथिंग विच इज द ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डकलिंग्स, सो दे वुड डू इट. सिमिलरली एन फ्रैंक यहाँ ये प्रूव कर रही थी कि क्योंकि वो स्कूल स्टूडेंट हैं तो बातचीत करना, टॉकिंग करना उनका ट्रेट है और उनको करना अलाउड होना चाहिए. बट जो फादर स्वैन है वो इनडायरेक्टली किसको रेफर कर रही हैं? मिस्टर कीसिंग को, कि वो क्या कर रहे हैं, वो इस हैबिट को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं जो करनी नहीं चाहिए, बिकॉज दैट इज समथिंग जो नेचुरल है. इट्स द characteristic of a school student. Mr. Keesing took the joke the right way. The next question can come on this line कि मिस्टर कीसिंग ने लकीली इस जोक को सही तरीके से लिया, बिकॉज कोई भी अपने टीचर को फादर स्वान बोलेगा इस तरीके से तो क्या होगा भाई, टीचर जो है वो डंडे मारेंगे, स्कूल से निकाल देंगे. बट क्या होता है एन फ्रैंक के केस में, मिस्टर कीसिंग ऐसा कुछ नहीं करते, बल्कि उनको पोएम अच्छी लगती है. सो बिकॉज वो लकी थी एन फ्रैंक, इसीलिए उन्होंने सही तरीके से जोक को लिया. अगर वो अदर साइड नेगेटिव वे में लेते तो पनिशमेंट मिल सकती थी किसको? एन फ्रैंक को. Read the poem to the class, adding his own comments. Since then, she was allowed to talk and was not assigned any extra homework. Mr. Keesing always made jokes. और इसके बाद फिर उनको कभी भी पनिशमेंट नहीं मिली. She was allowed to talk and this is how Mr. Keesing ने उनको पनिशमेंट देना बंद किया. उन्होंने सही तरीके से लिया इस जोक को, एंड एन फ्रैंक की जो बोल सकते हो बात थी वो प्रूफ भी हो गई. सो दिस इज हाउ मिस्टर कीसिंग को वो प्रूफ करती हैं अपना थॉट कि बातचीत करना अलाउड होना चाहिए. डन? ऑल राइट. सो विद दैट वी कम टू एन एंड ऑफ द चैप्टर जो कि है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक. तो कंप्लीटली सिर्फ यही पॉइंटर्स हैं इसमें. अब बात करें अगर मैसेज की, तो ये सॉर्ट ऑफ कोई मॉरल मैसेज देने के लिए नहीं है, बिकॉज ये सिर्फ पार्ट है डायरी एंट्री का. बट फिर भी अगर आपको क्वेश्चन आ सकते हैं तो वो इस टाइप के आ सकते हैं कि फ्रीडम के ऊपर, या फिर टॉकिंग जो एक ट्रेट है वो एन फ्रैंक का थॉट, आपका क्या मानना है. तो इस तरीके की चीजें हैं, बट एग्जैक्टली एक पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, तो कोई मैसेज एज सच हम नहीं बोल सकते. क्लियर? ऑल राइट. अब इस ही चैप्टर में आपको एक बहुत अच्छी पोएम दी है, दैट इज अमांडा. लेट्स रीड इट, लेट्स सी द राइम स्कीम, और फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे द मैसेज कन्वेड इन द पोएम. अब देखो, हम कंसिडर करेंगे एक ये पूरा पैराग्राफ जो अमांडा की मदर बोलती हैं, फिर पैराग्राफ्स को ब्रैकेट में मेंशन किया गया है, वो क्या है, वो अमांडा की बातचीत है. ठीक है, तो हम इनको कंसिडर करेंगे एक साथ, एंड देन वी विल सी द राइम स्कीम. आपके स्कूल में या सॉरी आपके एग्जाम में जिस भी लाइन को दिया जाएगा राइम स्कीम बताने के लिए, तो फिर आप एज इट इज उसको कॉपी मत कर देना, बिकॉज नाउ यू नो कि राइम स्कीम कैसे कैलकुलेट करते हैं या बताते हैं. क्लियर? तो फिर आपको वही फंडा फॉलो करते हुए राइम स्कीम देखनी है. तो यहाँ हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं लाइन्स को. डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स Amanda, stop that slouching and sit up straight. अमांडा. तो पहले पैराग्राफ जो भी ब्रैकेट में नहीं है वहां मदर बात कर रही है किससे? अमांडा से. क्लियर? तो सबसे पहले, क्योंकि अमांडा वर्ड देखो 3 जगह रिपीट हो रहा है, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, उनको सेम ए से रेफर करना है. क्लियर? फिर क्या बचता है? वर्ड स्ट्रेट. अब स्ट्रेट और अमांडा सेम साउंड कर रहे हैं क्या? नहीं, तो ये हो जाएगा बी. तो ए बी ए क्या हो गई इस पैराग्राफ या सॉरी इस स्टैंजा की राइम स्कीम. क्लियर? नंबर 1 एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, पोइट कौन है भाई? रॉबिन ग्लाइन. क्लियर?
अब इस स्टैंजा में बेसिकली सिर्फ ये चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि जो अमांडा की मदर हैं वो उनको ऑर्डर दे रही हैं, वो उनको बोल रही हैं स्टॉप बाइटिंग नेल्स, अपने नाखून मत खाओ, सिट स्ट्रेट विदाउट बेंडिंग शोल्डर्स, एक प्रॉपर पोस्चर में बैठो, झुक के मत बैठो, जो कि हर कोई करता है। तो उनकी मम्मी उनको चिल्ला रही हैं, बोल रही हैं नाखून मत खाओ, सीधे बैठो, झुक के मत बैठो अमांडा। एंड मदर इज कॉन्स्टेंटली नैगिंग हर डॉटर, वो बार बार कंटिन्यूसली अमांडा को चीजें बता रही है, ये करो, ऐसा मत करो, ऐसे बैठो, ये मत खाओ। क्लियर? तो सिर्फ इतनी सी ही चीजें हैं यहाँ पर, बाइट योर नेल्स, नाखून मत खाओ, हंच योर शोल्डर्स मतलब झुक के मत बैठो, दैट स्टॉप दैट स्लाउचिंग, स्लाउचिंग यानी स्ट्रेट नहीं बैठना बल्कि थोड़ा झुक के बैठना, उस पोस्चर को कहते हैं स्लाउच करना। और फिर बस वो यही चीजें उनको समझाती हैं। अब जब अमांडा की मदर ये सब बोल रही है तो अमांडा के दिमाग में क्या चल रहा है, लेट्स रीड इट। तो अमांडा बोलती हैं देयर इज अ लैंग्वेड एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। तो जब उनकी मदर उनको ये सब चीजें बोल रही हैं तो अमांडा उनकी बातें सुनकर एक दूसरे वर्ल्ड में चली जाती है, उनका इमेजिनरी वर्ल्ड, और वहां वो सोच रही हैं कि एक लैंग्वेड एमरल्ड सी है। एमरल्ड का मतलब क्या होता है, कलर होता है ग्रीनिश सा, उस कलर की सी है, वो ऐसा सोच रही हैं। तो अमांडा इमेजिन्स हरसेल्फ टू बी इन अ डीप ग्रीन सी, लैंग्वेड यानी बहुत डीप, एमरल्ड ग्रीन और सी, तो बहुत ही डीप ग्रीन कलर की सी में वो हैं। She wants to be the only inhabitant of that beautiful green sea. Soul मतलब अकेले, alone. Inhabitant मतलब वहाँ की रहवासी, resident of that sea. तो वो सोच रही हैं कि सिर्फ अकेली वही रहती हैं उस समुद्र में। She imagines herself like a mermaid. फिर वो सोचती है कि वो क्या है, एक mermaid है। mermaid क्या होता है, एक कैरेक्टर माना जाता है, aquatic creature, जिसका हेड और अपर बॉडी पार्ट जो होती है वो किसकी होती है, फीमेल की, बट जो टेल होता है पार्ट वो एक फिश की तरह होता है, सॉर्ट ऑफ। ये कैरेक्टर को आप क्या बोलते हो, मर्मेड। तो वो सोच रही है वो एक मर्मेड है, वो एक डीप एमरल्ड कलर की सी में अकेली रहती हैं और वहां पे वो ड्रिफ्ट कर रही हैं, पानी की वेव्स के साथ मूव कर रही हैं ब्लिसफुली यानी हैप्पीली। सो शी इज हैप्पी, शी इज ड्रिफ्टिंग हैप्पीली देयर इन दैट स्टैंजा। क्लियर? तो वो यही चीज यहाँ पे सोच रही हैं कि ऐसे जब उनकी मदर बोल रही है ना कि ये मत करो वो मत करो, तो वो कहाँ चली गई अपने वर्ल्ड में कि मैं वहां अकेली हूँ, फ्रीडम है मेरे पास और मैं जो चाहूँ वैसा कर सकती हूँ, वो भी हैप्पीली। अब यहाँ पे सी वर्ड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी, बिकॉज अमांडा और जो नेक्स्ट वर्ड था वहां पर वो दोनों ही वर्ड से मैच नहीं करता वर्ड सी। क्लियर? तो दिस वुड बिकम सी। नेक्स्ट इज मी। अब सी और मी सेम साउंड कर रहे हैं तो दिस इज ऑल्सो सी, एंड ब्लिसफुली सी मी दोनों से ही सेम साउंड कर रहा है तो ये भी क्या हो गया, सी। तो ये हो गई आपकी राइम स्कीम फॉर द फर्स्ट 8 लाइन्स। क्लियर? सिमिलरली सेम राइम स्कीम आपको देखने को मिलेगी इन द नेक्स्ट स्टैंजास टू। डन? ऑल राइट, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा, जहां पर अगेन आप ब्रैकेट्स में नहीं देखोगे बातचीत, यानी इस बार अगेन अमांडा की मदर बात कर रही है किससे, अमांडा से। तो नेक्स्ट वो बोलती हैं डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। तो वो क्वेश्चंस कर रही हैं इस बार, शी इज इंक्वायरिंग फ्रॉम हर डॉटर अमांडा, शी इज क्वेश्चनिंग हैव यू डन योर होमवर्क। तो पहला क्वेश्चन पूछती है डन हर होमवर्क और नॉट। दूसरी चीज बोलती हैं तुमने अपना रूम क्लीन किया कि नहीं किया, टाइडी किया कि नहीं किया, और फिर उनको रिमाइंड करती हैं कि मैं सोच रही हूँ या मुझे ऐसा लगता है मैंने तुमको बोला था तुम्हें अपने शूज क्लीन कर लेने चाहिए थे अमांडा। तो अगेन मदर जो है वो उनसे कॉन्स्टेंटली क्वेश्चंस कर रही हैं, होमवर्क किया कि नहीं किया, रूम को क्लीन किया कि नहीं किया, और मैंने तुम्हें बोला था तुम्हें अपने शूज क्लीन करने हैं। तो ये तीनों चीजें सोचकर फिर से अमांडा क्या चली जाएंगी अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में। क्लियर? तो सेम चीज है, देखो अमांडा वर्ड रिपीट हो रहा है तो ये हो जाएगा ए। नेक्स्ट वर्ड है शूज। अब शूज और अमांडा सेम साउंड कर रहे हैं क्या, नो, तो दिस वुड बिकम बी। तो बहुत इजी राइम स्कीम है इस पूरी पोएम की। क्लियर? ऑल राइट, अब जो नेक्स्ट स्टैंजा है वो ब्रैकेट्स में मेंशन्ड है, यानी वापस अमांडा अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में चली गई हैं। तो जब उनको ये सब चीजें बोली जाती हैं तो वो क्या सोच रही हैं, आई एम एन ऑर्फन roaming the street, I pattern soft dust with my hushed bare feet, the silence is golden, the freedom is sweet। तो वो ये सोचती हैं कि जब उनकी मम्मी ये बोल रही ना ऐसा करो वैसा करो, होमवर्क किया नहीं किया, रूम साफ किया कि नहीं किया, शूज को क्लीन क्यों नहीं किया, तो वो सोचती हैं काश मैं क्या हूँ अब अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में एक ऑर्फन हूँ। ऑर्फन का मतलब क्या होता है, अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर नो मोर, यानी कि जिन्हें आप अनाथ बोलते हो हिंदी में, उन्हें हम इंग्लिश में ऑर्फन कहते हैं। तो वो इतनी बोल सकते हो इतनी बुरी तरीके से उनको ये चीज़ दिमाग में बैठ गई है कि उनकी मदर उनको इतना ज़्यादा नैक करती है कि वो इतना एक्सट्रीम सोच चुकी हैं कि मैं क्या हूँ, एक ऑर्फन हूँ, और वो खुश हैं उस बात को सोचते हुए कि मेरे पेरेंट्स ना हो।
और वो क्या कर रही है, शी इज रोमिंग फ्रीली इन द स्ट्रीट, उनको कोई रोकने वाला नहीं है, बिल्कुल फ्रीडम है और वो मस्त घूम रही है कहाँ, स्ट्रीट्स में. So Amanda imagines to be an orphan. She is roaming in the streets. That is, she is walking freely. पैटर्न ऑफ डस्ट विथ माई हस्ड बेयर फीट. अब शूज की बात की ना तो वो क्या सोच रही है कि मैं शूज पहनूंगी नहीं, बेयर फीट यानी अनकवर्ड फीट के साथ वो क्या कर रही हैं, सैंड में पैटर्न्स बना रही हैं. जब सैंड में आप बिना जूते चप्पल पहने जाते हो तो आपके पैर का पैटर्न बन जाता है. तो वो यही सोच रही हैं कि उनके बेयर फीट हैं, हस्ड यानी कि साइलेंट, कोई आवाज नहीं आ रही है और वो साइलेंस उनको बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए उन्होंने ये वर्ड सोचा है. The silence is golden, the freedom is sweet. तो नेक्स्ट वो जो साइलेंस है उनके पास कि वो बिल्कुल रोम कर रही है इन द स्ट्रीट्स विदाउट एनीबडी, कोई मदर उनकी नहीं है वहां पर नैक करने के लिए, कोई उनको कुछ बताने के लिए नहीं है. सिमिलरली वो बढ़िया चल रही है विद अनकवर्ड फीट, यानी कोई उनको नहीं बोलेगा कि शूज पहन लो, शूज को क्लीन कर दो, क्लियर. और वो जो ये चीज है ना कि बिल्कुल साइलेंस है, कोई कुछ नहीं बोल रहा उनको, वो चीज है जो उनको बहुत पसंद है. दैट्स वाई शी इज इमेजिनिंग दैट साइलेंस इज गोल्डन, यानी जैसे गोल्ड जो होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा ग्लोरियस, वैसे साइलेंस क्या है उनके लिए, ग्लोरियस. एंड सिमिलरली फ्रीडम जो है वो उनके लिए क्या है, स्वीट है. जैसे कि अगर हमारे को कोई भी हम स्वीट खाते हैं तो वो क्या है, हमारे लिए बहुत अच्छा टेस्ट है, हमें बहुत अच्छा लगता है, राइट, स्वीट चीजें खाना. सिमिलरली उनके लिए फ्रीडम क्या है, स्वीट है, क्लियर. तो इस तरीके से वो अपने वर्ल्ड में चली जाती हैं बिकॉज उनकी मदर जो है कंटिन्यूसली नैक कर रही है. सो वुड हैव ड्रॉन पैटर्न्स ऑन द सॉफ्ट डस्ट विद अ हस्ड. हस्ड मींस क्वाइट एंड स्टिल बेयर फीट. क्योंकि शूज की बात की है तो यहाँ पे वो सोच रही है कि अब वो कोई फुटवेयर पहनेगी नहीं, शी वुड रोम, शी वुड वॉक ऑन द सैंड विथ हर बेयर फीट, क्लियर. अब यहाँ पे वर्ड स्ट्रीट जो है उसको आप क्या बोल दोगे, सी, बिकॉज वो बिल्कुल भी सेम साउंड नहीं कर रहा है विद अमांडा एंड द अदर वर्ड, ठीक है, शूज. नेक्स्ट है फीट. अब फीट और स्ट्रीट क्या कर रहे हैं, सेम साउंड, तो दिस इज सी. सिमिलरली स्वीट एंड स्ट्रीट आर अगेन साउंडिंग सेम, सो दिस इज सी. तो वही चलता रहेगा, ए ए बी ए सी सी सी. दिस इज द राइम स्कीम जो ऐसे पैराग्राफ्स में मूव होती रहेगी, क्लियर, ऑल राइट. नेक्स्ट जो लाइंस हैं अगेन वो ब्रैकेट में नहीं है. जैसे अगर राइट वर्ड कहें तो वो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि पैरेंथेसिस कहते हैं किसको, जो ब्रैकेट्स में लिखे होते हैं, क्लियर. जो ब्रैकेट में वर्ड्स है ना उन्हें क्या कहा जाएगा, पैरेंथेसिस में मेंशन है क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है. तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो अमांडा के क्या है, थॉट्स हैं, क्लियर. तो अमांडा की थॉट्स कहाँ पे मेंशन है, ब्रैकेट्स में मेंशन है, क्योंकि वो एक अलग चीज है जो उनके दिमाग में चल रही है, बात नहीं कर रही है किसी से, बट अमांडा की मदर उनको डायरेक्टली बोल रही है तो वो ब्रैकेट में मेंशन नहीं है, क्लियर. तो अब ये यहाँ पे पैरेंथेसिस नहीं है, दिस मीन्स यहाँ अमांडा की मदर उनको बोल रही है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा. यानी कि यहाँ पे वो बोल रही हैं अमांडा को, चॉकलेट मत खाओ क्योंकि तुम्हें क्या है, एक्ने हो जाते हैं, तुम्हें पिंपल्स हो जाते हैं, और प्लीज मेरी तरफ देखो जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ, क्लियर. तो ओवरऑल जो मदर है अमांडा की वो उनको बोलती हैं डोंट ईट चॉकलेट्स एंड रिमाइंड्स हर ऑफ हर एक्ने दैट इज पिंपल्स. तो वो उनको रिमाइंड करती है तुम मीठा खाती हो तुम तो तुम्हें पिंपल्स आ जाते हैं, चेहरा खराब हो जाएगा. तो वो होता है ना, ब्यूटी के लिए बहुत ज्यादा लोग सोचते हैं, पेरेंट्स आर वेरी मच वरीड अबाउट द ब्यूटी स्पेसिफिकली ऑफ देयर गर्ल्स, क्लियर. तो आगे जाके फेस खराब नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ वो उनकी मदर भी सोच रही है, तो वो उनको बोलती हैं चॉकलेट्स मत खाओ. और क्योंकि अमांडा इंटरेस्टेड ही नहीं है उनकी बातें सुनने में, कंटिन्यूसली वो उनको बता रही है क्या करना है क्या नहीं, तो शी इज काइंड ऑफ अननॉयड या फिर शी इज लॉस्ट इन हर ओन वर्ल्ड, इसीलिए वो उन पे ध्यान नहीं दे रही. तो उनकी मदर उनको बोलती हैं स्कोल्ड्स एंड आस्क हर टू पे अटेंशन टू व्हाट हर मदर सेज, कि मेरी तरफ देखो एंड लिसन टू व्हाट आई एम टेलिंग यू. सो दिस इज हाउ शी इज स्कोल्डिंग और शी इज टेलिंग हर डॉटर कि जो भी मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनो, क्लियर. तो बहुत ईजी लाइन्स हैं, कुछ भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. चलिए राइम स्कीम वही चीज है, अमांडा रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो गया, ए. फिर नेक्स्ट वर्ड बचता है यहाँ पे यू. अब अमांडा और यू सेम साउंड कर रहे हैं क्या, नो, तो दिस वुड बिकम बी, क्लियर, ऑल राइट. अब नेक्स्ट अगेन जो स्टैंजा है वो ब्रैकेट्स में है, फिर से देख लेते हैं. ब्रैकेट्स को क्या कहते हैं, पैरेंथेसिस. तो पैरेंथेसिस में जो भी चीजें मेंशन है वो क्या है, वो है थॉट्स ऑफ अमांडा. तो अमांडा की मदर जब उनको चिल्लाती हैं तो अगेन शी इज लॉस्ट इन हर ओन वर्ल्ड, और अब वो क्या सोच रही हैं, आई एम रपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर.
I'll certainly never let down my bright hair. अब वो एक फेरी टेल कैरेक्टर की तरह सोचने लगती हैं कि वो क्या है, रपंजल है। रपंजल क्या है, एक फेरी टेल कैरेक्टर है फ्रॉम अ फेरी टेल, वॉज कैप्चर्ड इन टार। एक टार में उनको एक विच ने, एक चुड़ैल ने बंद करके रखा था और उनके बाल जो है वो बहुत लंबे थे, गोल्डन कलर के थे। उन बाल को वो नीचे ड्रॉप करती थी और विच जो है उसी से क्लाइम करके उनकी विंडो के अंदर, टावर के अंदर पहुंच जाती थी। क्लियर? सो शी वॉज कैप्चर्ड इन अ टार बाय अ विच। तो क्योंकि वो टार में अकेली रहती थी, ये चीज देखकर या सोचकर अमांडा सोच रही हैं कि वो काश रपंजल होती, या फिर वो सोच रही है वो एक रपंजल है अपने वर्ल्ड में, उनको किसी चीज की केयर करने की जरूरत नहीं है। लाइफ इन अ टार इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, और वो ये जो टार है उसमें रहेंगी क्योंकि वो रपंजल है, तो उनकी लाइफ कैसी होगी, ट्रैंक्विल, पीसफुल होगी, शांति से भरी हुई होगी और रेयर होगी, क्योंकि ऐसी लाइफ किसी की नहीं होती। कभी कोई रहता है क्या टार में? नहीं। तो ये अनयूजुअल सी लाइफ होगी और दिस इज समथिंग शी इज थिंकिंग दैट शी इज अ रपंजल, but would not let her hair down so nobody comes to the tower. But वो बोलती हैं I'll certainly, I'm sure 100% I would never let down my bright hair. मैं अपने बालों को, क्योंकि वो रपंजल हैं, उनके बाल भी क्या होंगे, बड़े, तो वो अपने बालों को नीचे नहीं छोड़ेंगी, ऐसे नहीं लेट डाउन करेंगी ताकि कोई भी उससे क्लाइम करके ऊपर ना आए। यानी कि उनको अकेले रहना है टार में। बस एक चीज है जो वो रपंजल की तरह नहीं करेंगी, वो है अपने बालों को नीचे करना ताकि कोई चढ़कर आए। तो ये है ये लाइंस का मतलब, जहां पे वो अगेन कहां चली गई, अपने वर्ल्ड में। ये सोच रही हैं कि वो क्या है, एक रपंजल। क्लियर? सेम चीज है, केयर वर्ड जो है वो अमांडा से सेम साउंड नहीं करता है, नेक्स्ट वर्ड यू से भी नहीं करता है, सो दिस वुड बिकम सी। रेयर एंड केयर आर साउंडिंग सेम, सो दिस इज अगेन सी, एंड हेयर एंड केयर आर अगेन सेम, सो ये भी क्या हो जाएगा, सी। तो बहुत इजी सी राइम स्कीम है। क्लियर? अब देखते हैं जब अमांडा ये सब चीजें सोच रही हैं तो उनकी मदर उनको फिर से कुछ बोलती हैं, बिकॉज ये लाइंस भी पैरेंथेसिस में नहीं है। तो उनकी मदर बोलती हैं स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नैक्ड एट यू अमांडा। तो ये लाइंस बहुत ही हंसी जाती पढ़ के, क्योंकि उनकी मदर का कहना है कि इस तरीके का अपना मूड मत बना के रखो, क्योंकि कोई भी तुम्हें देखेगा तो सोचेगा मैंने तुम्हें बहुत चिल्लाया है या मैं तुम्हें नैक कर रही हूँ, बार बार बता रही हूँ क्या करना है क्या नहीं करना, बल्कि वो वही कर रही हैं। क्लियर? तो वो जो है अमांडा को बोलती हैं कि स्टॉप सल्किंग, यानी डू नॉट हैव दिस अनस्टेबल मूड, मूडी मत बनो, नॉर्मल रहो, इस तरीके से अपना मूड खराब करके मत बैठो। वॉन्ट्स हर डोंट बी मूडी, उन्हें समझाती हैं कि यू आर ऑलवेज सो मूडी, डोंट बी मूडी। मूडी क्या होते हैं? जिनका पता ही नहीं होता कब गुस्से में आ गए, कब चिढ़ गए, बट उनकी गलती भी नहीं है, राइट? क्योंकि उनको इतनी बार नैक किया जा रहा है, तो अमांडा का ये नेचर जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वो जो है यही सोच रही हैं, उनको बोलती है, वॉर्न करती है अपनी डॉटर को कि मूडी मत बनो और इस तरीके का अपना जो तुम्हारा नेचर है तुम सल्क कर रही हो, स्टॉप दैट। Her behavior make others think she is constantly nagged by her mother, and she is like, if you will be sulking like this, if you will have the same mood like this, कोई भी जो तुम्हें देखेगा तो वो यही सोचेगा कि तुम्हारी जो मदर है, यानी कि मैं, तुम्हें कंटिन्यूसली नैक करती हूँ, कंटिन्यूसली तुम्हें बताती हूँ क्या करना है क्या नहीं करना। क्लियर? तो इस पे जो है ये पोएम एंड होती है। अगेन सेम यहाँ पर अमांडा रिपीट हो रहा है, तो दिस इज ए। वर्ड यू जो है वो इनकी तरह सेम साउंड नहीं कर रहा, तो ये क्या हो जाएगा, बी। क्लियर? सो दिस इज द राइम स्कीम ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टैंजा। डन? ऑल राइट। सो ओवरऑल हमें क्या समझ आता है इस पोएम से कि यहाँ पे बात हो रही है कि पेरेंट्स जो हैं जो कुछ भी करते हैं वो बिल्कुल अपने बच्चों के बेटरमेंट के लिए करते हैं, बट बार बार एक चीज को कंटिन्यूसली बताना, नैक करना इज नॉट करेक्ट। और बच्चों को थोड़ी फ्रीडम देनी चाहिए सोचने की, उनसे बात अच्छे से करनी चाहिए, प्यार से समझाना चाहिए, नहीं तो वो कोई दूसरे वर्ल्ड में चले जाते हैं जैसे अमांडा चली गई हैं। क्लियर? तो मैसेज हमें क्या मिलता है इस पोएम से, चिल्ड्रन शुड नेवर बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर फ्रीडम, कभी भी उनकी फ्रीडम कंप्लीटली स्नैच मत करो। देयर शुड बी सम फ्रीडम गिवन टू देम, जो कि उनके अच्छे के लिए हो, उतनी फ्रीडम उनको देनी चाहिए। कंटिन्यूस नैगिंग मेक्स चिल्ड्रन टू इमेजिन अ डिफरेंट वर्ल्ड, और अगर कोई आप कंटिन्यूसली उनको नैग करते हो तो उनका प्रेजेंट वर्ल्ड जो है उनको पसंद नहीं आता और वो कोई दूसरे वर्ल्ड में चले जाते हैं, जैसे कि अमांडा चली गई। Too many instructions and too much control are resented by children. Listen to their parents half-heartedly and indulge in daydreaming. तो बहुत अगर बच्चों को कंटिन्यूसली नैग किया जाता है, कंटिन्यूसली इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, रोज उनको सिर्फ यही बताया जाता है ये मत करो वो मत करो, तो बच्चे ये सब चीजें धीरे धीरे सुनना बंद कर देते हैं। They don't pay attention to their parents और half-heartedly सुनते हैं, यानी विदाउट एनी इंटरेस्ट सुनते हैं अपने पेरेंट्स की बात, and indulge in daydreaming, और फिर जागते जागते बिना सोए, जिसको आप बोलते हो सपने में चले जाना, सपने देखने
देखने लगता है उसे कहते हैं डे ड्रीमिंग। तो वो जो है ऐसे सपने देखने लगते हैं और किसी और वर्ल्ड में चले जाते हैं बिकॉज उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता प्रेजेंट वर्ल्ड में, उनको कंटिन्यूसली ये सारी चीजें सुनना पसंद नहीं आती है। क्लियर? ऑलराइट, सो आई होप आपको मैसेज जो है वो कन्वेड हो गया। अब जल्दी से हम देख लेते हैं सारी लिटरेरी डिवाइसेस जो यूज हुई हैं इस पर्टिकुलर पोएम में। तो सबसे पहले एनाफोरा। एनाफोरा क्या है कि बिगिनिंग में अगर कोई वर्ड जो है वो रिपीट हो रहा है तो उसे कहेंगे एनाफोरा। क्लियर? जैसे डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स में डोंट वर्ड कहाँ है? बिगिनिंग में है लाइंस के, और सेम वर्ड है रिपीट हो रहा है तो ये हो गया एनाफोरा। अगर ये वर्ड कहीं और रिपीट हो रहा होता तो वो होता रिपीटेशन। क्लियर? सिमिलरली डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइडी योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, तो यहाँ वर्ड डिड क्या हो रहा है? रिपीट, बिगिनिंग में है तो ये हो गया एनाफोरा। क्लियर? ऑलराइट, नेक्स्ट है एजोनेंस। तो एजोनेंस में क्या है? वॉवल साउंड का रिपीटेशन होगा, और वो वॉवल साउंड कहीं पे भी रिपीट हो सकता है, बिगनिंग में, मिडिल में, एंड में, बट क्लोज प्रॉक्सिमिटी में वर्ड्स होने चाहिए, यानी सेम लाइन में वर्ड्स वो होने चाहिए। तो जैसे कि डोंट हंच योर शोल्डर्स में ओ साउंड जो है वो वॉवल साउंड है, वो रिपीट हो रहा है, भले ही वो बिगनिंग में, मिड में, कहीं पे भी हो, तो ये क्या हो गया? एजोनेंस। सिमिलरली आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज में ओ साउंड जो कि वॉवल साउंड है, रिपीट हो रहा है क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स में, कहीं पे बिगनिंग में नहीं, बिगनिंग में कहीं पे भी नहीं है, कहीं पे एंड में है, कहीं पे मिड पे है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Will you please look at me when I'm speaking to you? अगेन यहाँ पे भी आपको ओ वॉवल साउंड जो है रिपीट होता हुआ दिख रहा है, बिकॉज वो बिगिनिंग में नहीं है सिर्फ, तो इसीलिए ये एजोनेंस है। अगर बिगिनिंग में होता तो वो कॉन्सोनेंट साउंड में होता तो वो एलिट्रेशन होता। क्लियर? तो ये क्या हो गया? एजोनेंस, जब वॉवल साउंड बिगिनिंग एंड मिड कहीं पे भी रिपीट हो रहा हो क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स में। डन? ऑलराइट, नेक्स्ट है कॉन्सोनेंस। अब एजोनेंस में वॉवल साउंड था, कॉन्सोनेंस में सेम रूल्स हैं, बट क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट। जैसे आई एम रपंजल आई हैव नॉट अ केयर में र साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, रिपीट हो रहा है, क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स में हो रहा है, और जरूरी नहीं है वो सिर्फ बिगिनिंग में हो, नहीं तो वो क्या हो जाएगा? एलिट्रेशन। क्लियर? ऑलराइट, नेक्स्ट है इमेजरी। इमेजरी का मतलब ऐसा कुछ जिससे वर्ड सुनकर आपके दिमाग में एक इमेज फॉर्म हो। तो जब वो बोलती है ना कि मैं एक एमरल्ड सी में हूँ, आई एम ड्रिफ्टिंग हैप्पीली, मैं सोल इनहैबिटेंट हूँ, तो आपको ऐसा दिख रहा है, ठीक है, मर्मेड है, एमरल्ड कलर की सी है, उसमें वो ड्रिफ्ट कर रही है, तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में क्या बना रही हैं? इमेज बना रही हैं, तो इसीलिए ये क्या हो गया? इमेजरी का एग्जाम्पल। क्लियर? ऑलराइट, नेक्स्ट है रिपीटेशन। कुछ नहीं, कोई भी चीज पूरी पोएम में कहीं पे भी रिपीट हो रही हो वो है रिपीटेशन। जैसे वर्ड अमांडा आपको हर जगह मिल जाएगा, जहां पे भी पैरेंथेसिस में स्टैंजास नहीं है वहां हर जगह अमांडा वर्ड को 3-3 बार यूज किया गया है। सो दिस इज व्हाट इज रिपीटेशन। क्लियर? ऑलराइट, नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन और कॉन्सोनेंट्स में क्या डिफरेंस है? दोनों में ही कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट होते हैं, बट एलिट्रेशन में वो वर्ड के बिगिनिंग में ही होना चाहिए साउंड, और कॉन्सोनेंट्स में वो मिड एंड कहीं पे भी हो सकता है। तो जैसे स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट में स साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है, बट क्योंकि वो वर्ड के देखो बिगिनिंग में ही है तो इसीलिए वो क्या हो गया? एलिट्रेशन। सिमिलरली स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा में भी स साउंड जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो रिपीट हो रहा है, बिगिनिंग में ही प्रेजेंट है, इसीलिए ये भी क्या हो गया? एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। क्लियर? ऑलराइट, नेक्स्ट है मेटाफोर। मेटाफोर मतलब क्या है? कंपैरिजन हो, बस कंपैरिजन में लाइक या एज वर्ड का यूज ना हो रहा हो तो वो हो जाता है मेटाफोर, नहीं तो वो क्या हो जाएगा? सिमिली। तो यहाँ पे जैसे बोला गया है एमरल्ड सी, तो एमरल्ड क्या है? ग्रीन कलर है, सी जो है वो क्या है? समुद्र। तो एमरल्ड का जो कलर है वो किससे कंपेयर किया गया है? एमरल्ड से, तो इनडायरेक्टली दिस इज रेफरिंग टू एमरल्ड, सो दिस इज व्हाट? अ मेटाफोर। क्लियर? सिमिलरली अगर हम देखें कि साइलेंस इज गोल्डन, क्योंकि क्या साइलेंस आपको कलर दिखता है क्या, या गोल्ड की तरह कुछ दिखता है क्या? नहीं। तो यहाँ कंपैरिजन किया है कि ग्लोरियस होता है ना जैसे गोल्ड, वैसे ही साइलेंस भी क्या है? ग्लोरियस लाइक गोल्डन। तो ये क्या हो गया? मेटाफोर। फ्रीडम इज स्वीट बोला है, लाइक और एज वर्ड यूज नहीं किए हैं, नहीं तो सिमिली हो जाता। तो फ्रीडम को आपने कभी खाया है क्या? नहीं, बट वो क्या बोल रहे हैं? फ्रीडम स्वीट है, यानी कि वो बहुत अच्छा टेस्ट है उसका, यानी बहुत ज्यादा बोल सकते हो वेलकमिंग है, अच्छा लगता है क्या? फ्री रहना। तो यहाँ पे अगेन फ्रीडम को स्वीट इन टेस्ट से कंपेयर किया गया है, इसीलिए ये भी क्या हो गया? एक मेटाफर का एग्जाम्पल। क्लियर? ऑलराइट,
देन इज अल्यूजन। अब ये एक नई लिटरेरी डिवाइस है। अल्यूजन का मतलब क्या होता है, इसको इल्यूजन से थोड़ा बहुत कर लो लिंक तो याद रहेगा। एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस जहां पर हम किसी अनादर ऑब्जेक्ट को लेते हैं, यानी कुछ ऐसा जो आउट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर हो, थोड़ा इमेजिनरी हो, कोई भी इवेंट हो जो हम नॉर्मली नहीं देखते हैं और इमेजिनेशन की तरह हम यूज कर रहे हैं उसको, कहा पोइट्री में। जैसे कि मरमेड और रपंजल कभी आपने देखी है क्या? नहीं, बट ये कैरेक्टर जो है वो कहीं और से हमने उठाया, एक फेरी टेल कैरेक्टर है, एक एक्वाटिक क्रीचर है, माना जाता है बट ऐसा होता नहीं है। तो ये कैरेक्टर्स जब आप पोएम में लेकर आए हो तो इन्हें क्या कहोगे कि आपने यहाँ पे अल्यूजन का एग्जाम्पल यूज किया है। सो दिस इज अ लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन दिस पोएम। क्लियर? ऑल राइट। So with this we finally come to an end of the one shot revision of the poem also. अब हमें पूरा चैप्टर जो है वो भी रिवाइज हो गया, पोएम भी रिवाइज हो गई, राइम स्कीम, लिटरेरी डिवाइस, एवरीथिंग, इवन द मैसेज ऑफ द पोएम। क्लियर? अब आपके लिए है भाई होमवर्क, जो कि आपको घर पे सॉल्व करने की कोशिश करनी है, और आपको ये आंसर्स लिखने के बाद हम इसके आंसर्स डिस्कस भी करेंगे कब? इन द लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन, जो कि इस चैप्टर पे बेस्ड होगा। सो हियर आर योर क्वेश्चंस। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल जस्टिफाई। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, अब आपके ऊपर है आप इसको कितनी ब्यूटीफुल लैंग्वेज के साथ लिख सकते हो। सो ट्राई टू राइट द आंसर ऑन दिस फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, एक्सेस ऑफ पैरेंटल लव may make a child pampered. In the same way, excess of nagging may throw a child into negativity. Justify with reference to the poem Amanda. समझा देती हूँ, पर इस पे आंसर लिख लेना कि अगर बहुत ज्यादा पेरेंटल लव शो करते हैं, यानी पेरेंट्स अगर बहुत ज्यादा प्यार करते हैं अपने बच्चों से, तो ऐसा है कि वो पैम्पर्ड होते हैं, ठीक है, लाडले हो जाते हैं बच्चे। बट अगर इतना ही एक्सेस में अगर आप नैगिंग करते हो, यानी बहुत बार उनको रोक टोक करते हैं पेरेंट्स, बच्चों को क्वेश्चंस करते हैं, ये बताते हैं करो वो करो, तो फिर उससे क्या हो जाता है, बच्चे जो हैं वो नेगेटिव साइड में चले जाते हैं, उनको हर एक चीज फिर गलत लगने लगती है। तो क्या आपको ये चीज सही लगती है विद रेफरेंस टू द पोएम अमांडा? तो पहले इतना पार्ट एक्सप्लेन करोगे, फिर इतने पार्ट को एक्सप्लेन करोगे, फिर अमांडा के एग्जाम्पल से इस लाइन्स को प्रूव करोगे। तो हिंट भी दे दिया किस तरीके से आंसर को अप्रोच करना है। नाउ यू हैव टू बोल रही हूँ, 100% श्योरिटी के साथ बोल रही हूँ, मैंडेटरी है। सॉल्व दीज क्वेश्चंस, ट्राई टू राइट द आंसर्स, और फिर इनके आंसर्स जो है हम डिस्कस करेंगे इन द लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन। क्लियर? ऑल राइट। So now let's come to the end of the session, but with a very good positive thought, and that is you know you can. That means आपको पता है कि आप completely full marks लेकर आ सकते हो, because together we can score full marks. And I wish you all the best for your board preparation. I hope आप जो है बहुत ज़्यादा अच्छे से बिल्कुल ज़ोरों शोरों से प्रिपरेशन कर रहे हो, because I want you all to get full marks in your English language. Clear? So all the best, sending you lots of blessings and lots of love from my side. Keep working hard. All right? Okay. So with this we come to an end of the complete session of this video today. Now in the next video हम मिलेंगे with the next topic. But before that, if you have any doubts related to any other topic, any other subject, do go and visit Magnet Brains channel, because वहाँ आपको सारे subjects जो हैं that is from class 4th to 12th 100% free available हैं. So your doubts can be very beautifully cleared, that too for free. So I hope अगर आपको कोई भी doubt है, you are definitely going to check out the channel. Now